Welcome to Success Series. My name is Pari and today we'll be taking up class 10th, chapter number 16, Management of Natural Resources. Let's get started. Few questions first. Question is, which of the following is the old age concept of water harvesting system in Madhya Pradesh? The answer is the Bundis. Let's see the next question. Now children, let's see this question. The main cause for abundant coliform bacteria in the river Ganga is the options for disposal of human excreta directly, discharge of effluents from electroplating industries, washing of clothes or immersion of ashes. Coliform bacteria का major cause होता है disposal of human excreta directly. So the correct option is A. Now let's see another question. Explain the abbreviation of GAP. The correct answer is Ganga Action Plan. Ganga Action Plan is GAP. Now let's move to the next question. The pH range most conducive for life of freshwater plants and animals is किस pH में freshwater plants and animals को सबसे conducive life मिलेगी? The answer is 6.5 to 7.5 pH range में. Let's move to the next question. Which one of the following is an example of non-renewable resource? The correct answer is coal and minerals, क्योंकि अगर coal और minerals एक बार finish हो जाएंगे, इनको हम retrieve नहीं कर पाएंगे. These are non-renewable resources. Let's see the next question, children. Which gas is formed when fossil fuels are burnt in insufficient air or oxygen? जब oxygen पूरा नहीं मिल पाता, तो fossil fuels को burn करने पे कौन सी gas produce होती है? The correct answer is carbon monoxide. That is CO. Now let's move to the next question. What is the purpose of rainwater harvesting? To hold rainwater on the surface of the earth, to recharge groundwater, to use water for irrigation of crops or to rear fish. The correct answer, जो सबसे appropriate answer है, वो है to recharge groundwater. Groundwater table को complete करने के लिए उसको time to time उसमें water डालने के लिए important है कि rainwater harvesting हो. Let's see the next question. Let's see 1-mark questions now. Let's see this question. State 2 reasons each of conserving a forest and wildlife. Forest को conserve करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये retain करता है subsoil water को, prevent करता है कि कोई भी erosion ना हो, floods को check करने में help करता है, और ऑल्सो चिल्ड्रन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये नेचर का इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Children, let's see the next question. State an instance where human intervention has saved the forest from destruction. So जैसे एक human intervention जैसे अराबरी फॉरेस्ट रेंज में हुई थी वेस्ट बंगाल के, जहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी देखा गया था, जिन्होंने साल फॉरेस्ट को रिकवर करने में काफी वाइटल रोल प्ले किया था. See the next question, dear learners. Why must we conserve our forest? List any 2 causes for deforestation to take place. Also children, ऐसे questions में important ये होगा आप अपने answers को bullet points में दें. हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए और सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए जो कि सब सॉइल को रिटेन करने में हेल्पफुल हो. नाउ फॉरेस्ट चेक फ्लड्स एंड दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. डियर चिल्ड्रन, फॉरेस्ट को कंजर्व करने पे हमें इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ देखने को मिलती है. Any 2 causes, children, you can write about deforestation के causes में. First one is for industrial needs के लिए हमें forest required होते हैं, उसका wood required होता है, etc. And also for the development of projects like building of roads or dams, etc. Now let's see the next question.
लिस्ट एनी 2 ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहला सिस्टम हम लिख सकते हैं कि हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं पॉन्ड्स में, तो एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग है। या फिर हम स्मॉल डैम्स बना देते हैं, तो ये भी वाटर हार्वेस्टिंग करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस नाउ। Learners, we have to answer this question now. What is a dam? And write 2 main advantages and 2 ill effects of constructing a big dam. डैम्स एक तरीके से मैसिव बैरियर्स होते हैं जिनको हम रिवर्स और स्ट्रीम्स पे बनाते हैं, जो कि वाटर को यूटिलाइज करते हैं इरिगेशन के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी द 2 मेन एडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिग डैम। पहला तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ में भी डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2 इल इफेक्ट्स हमें बताने हैं कि डैम के क्या होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे डैम बनाया जाता है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल करना पड़ता है, यानी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह माइग्रेट करवाना पड़ता है। ऑल्सो डियर लर्नर्स, इसी की वजह से डिफॉरेस्टेशन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे भी काफ़ी हद तक हार्म होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ चिल्ड्रन, वी नीड टू लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर के लिए, और ये ईजिली ट्रांसपोर्टेबल होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप बड़े आराम से इनको कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। व्हिच of the 2 is a better option? First is to collect rainwater in ponds or artificial lakes, or to let it recharge groundwater by water harvesting. List 2 advantages of the option to justify your answer. Now dear children, इनमें से बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम रेन वाटर से रिचार्ज करें अपने ग्राउंड वाटर टेबल को, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर इवेपोरेट नहीं होगा और ग्राउंड वाटर ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा मॉस्किटोज वगैरह के लिए, एंड ऑल्सो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होगा वाटर हार्वेस्टिंग से। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी 3 marks questions. Now children, let's see this question. What is an equitable distribution of resources in a society and why it is necessary? Also dear children, हमें ये बताना है कि कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डियर चिल्ड्रन क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हम इंश्योर करें उन बेनिफिट्स को जो कि हमारे रिसोर्सेज को डेवलप करने में हेल्पफुल हो सभी के लिए, फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी इन डिटेल। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इक्वल राइट प्रोवाइड करता है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कि हम सबका इक्वल राइट है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करने में। अब अगर कोई इसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करता है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इसी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए डिप्राइव्ड होगा। द फैक्टर्स विच वर्क अगेंस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर, सबसे पहले है एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और दूसरा है एनर्जाइजेशन एंड मटेरियलाइजेशन, की ह्यूमंस बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रहे हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाउ डिड चिपको आंदोलन अल्टीमेटली बेनिफिट द लोकल पीपल? डिस्क्राइब ब्रीफली। चिपको आंदोलन जो कि 1970 में शुरू हुआ था रेनी विलेज ऑफ गढ़वाल में, वहाँ पे जो एक कॉन्ट्रैक्टर था उसे परमिशन मिल गई थी कि वहाँ के पेड़ काटे, बट वहाँ के जो लोकल पीपल थे, जो विमेन थी, उन्होंने ट्रीज को कटवाने से मना कर दिया। चिपको का मतलब होता है हग करना, एंड द मूवमेंट विच बिगेन विद द विलेजर्स हगिंग द ट्रीज, नाउ देयरफॉर इट वाज रेफर्ड टू एज चिपको आंदोलन। इस मूवमेंट ने लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट किया था
क्योंकि अगर उन्होंने अपने आसपास का ही इन्वायरमेंट कंजर्व किया, इसका मतलब है उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ सॉइल, बेटर एयर टू ब्रीथ, हेल्दी रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ क्लीन एंड हाइजेनिक वाटर, ये सारी फैसिलिटीज उन्हीं को अल्टीमेटली पहुंची होंगी, जो कि नेचर को बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है. Now let's see another question. Suggest 3 ways to maintain a balance between environment and development to survive. 3 ways होते हैं जिसमें हम एक बैलेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में. फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हमें सबसे पहले बहुत ही फ्रेंडली और डेवलपमेंटल साउंड मैनर में जुडिशियसली यूज करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, हमें रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए. वेस्ट वाटर जो कि इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं उसे रिसाइकिल करना चाहिए, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए स्टेप्स लेने चाहिए. Now children, let's see another question. What is meant by sustainable development? The environmentalists are insisting upon sustainable natural resource management, state its 4 advantages. Now अब sustainable development dear children होता क्या है? Dear learners, sustainable development का मतलब है कि हम अपने natural resources को इस तरीके से manage करें जिससे वो long term आराम से हमारे ही future generations के use में आ सके. Also हम इनको एक्सप्लॉइट ना करें अपने गेन्स, अपने पर्सनल सेल्फिश रीजंस के लिए. इट्स 4 एडवांटेजेस आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज को काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करने में काफी हेल्पफुल होती है. ये एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करती है. ये इकोलॉजिकल बैलेंस और कंजर्वेशन को करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये पोल्यूशन को भी काफी रिड्यूस करती है. So thank you children. I hope you're preparing well for your exams. All the best. Take care. Do like and subscribe our channel.